Hey guys, and welcome to Nerdcast, where we nerd out about various topics. Today we are going to discuss the security in your devices. When it comes to security, all of us is using Windows right now. Yeah. Like every one of us, like we can say that the common operating system all of us in all over India or all over the world is maybe Windows, or it can be Mac. It is Windows. Mac का 10% it market is share Windows. है. Yeah, हाँ. it is Windows, but for some people like United States, so people generally use Mac, so they don't use Windows. So our topic today is solely focused on the security from those operating systems which are provided to you, and like Windows Defender. So when it comes to Windows, you have Defender, and when it comes to Mac, Guru will carry on forward. Mac में you don't have any, like Mac में like they have inbuilt protections and firewall, so they don't have a name for your antivirus or something, but they have like their own firewall and all. And they because the thing is in Mac, when you are trying out an untouched application that is not like certified with the operating system, then they give you a warning and everything. In Windows, you just install an exe file and that's it. Like No, there is not no really, application or something. but Actually, nowadays they have changed the whole Yeah. thing in Windows 2. कि अगर नया कोई इंस्टॉलेशन कर रहे हो, विंडोज डिफेंडर बहुत स्ट्रिक्ट है. Yeah. एंड इट इज सो स्ट्रिक्ट कि डाउनलोड करने के बाद अगर वो चेक हो जाता है और उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाता है, Yeah, so तो वो फाइल better ऑटोमेटिकली that you डिलीट. have it on, because I've seen like many people who don't have it on and they are just ready to install any exe file that get downloaded. So it's like too See, risky, to be honest. What's the problem here is कि लोग जो piracy करते हैं ना, like remember when Da Vinci नहीं चल रहा था, तूने मुझे बोला था कि use Premiere Pro, I have a crack of it, but what that Premiere Pro setup was telling me that disable your Defender. And yes, yes. That's why I was a little bit worried about it. So I was like कि I'll wait for a few months for a stable update before updating anything. क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक बार किया था फॉर फोटोशॉप भी कि वीडियो एडिट करना है मुझे, तो बट उसने मेरे पीसी पे एक ट्रोजन हॉर्स ये कर दिया. Yeah. उसकी वजह से मेरा पीसी एकदम स्लो हो गया. एंड जब वो ऐसी चीज होती है तुम्हारे इस पे, तो तुमको मिनिमम आधा एक घंटा देना पड़ता है पूरा क्लीन करने को. एंड बाद में विंडोज डिफेंडर ऑन करके भी फायदा नहीं, क्योंकि वो एज अ Already प्रोसेस रन करने लगता है और विंडोज उसको कुछ नहीं कर सकता बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अलाउड दैट. Yeah. मतलब clean करना तो like I was scared one कि what if like I get some kind of a virus, and then it scared me because I have 3.5 terabytes of data in my PC. Like उसको अगर मैं clean कर दूंगा तो where like, तो अब मैंने सबका backup रखा हुआ है. Like I have kept like 2-3 backups of each and everything. Like हमारी recordings है, I have like literal 2 backups. एक हमारे common OneDrive पे, एक मेरे अलग OneDrive पे second backup है. I am keeping multiple backups of each and everything. But नहीं होता तो it gets really scary. Like मैं जब भी कोई नया important document download करता सबसे पहले उसका like I keep a backup at that very time only. Because the thing is कि even if you are trying कि तुमने डिफेंडर रखा, सब कुछ रखा है, even then you never know कि कब कोई स्लिप हो जाए. कभी तूने कुछ इंपॉर्टेंट चीज तूने देखा कि चल नहीं रहा, डिफेंडर इज नॉट अलाउइंग, बट मे बी इट्स समथिंग रिलेटेड टू योर प्रोग्राम दैट यू वांट टू यूज एंड यू अलाउ इट लाइक मैंडेटरी अपनी तरफ से. यू टेक इट आउट ऑफ दैट क्वारंटाइन विंडोज एंड सपोज एट दैट टाइम ओनली इट अटैक्स योर कंप्यूटर, so you never know. It is obviously there. So Windows will provide you a certain amount of security that it feels. Yeah. अगर उसके ऊपर भी तुम लोग का अलाउ करना ही है, अगर चोर को तुम लोग बिल्डिंग में अलाउ ही कर रहे हो खुद से, तो फिर तो वो चोरी करेगा ही. ये चीज फर्स्ट स्टेप उस पे आता है. द सेकंड स्टेप इज ब्राउजिंग के टाइम पर. लाइक फर्स्टली यूज द 3 मेन ब्राउजर्स. उसके अलावा इफ यू आर गोइंग फॉर थर्ड पार्टी लाइक ब्राउजर, ट्राई कि भाई 4 जो मेन प्लेयर्स है मार्केट में, यू नो, माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम, फायरफॉक्स और ओपेरा. इन चारों का like you are using the latest build, you are using the not the developer or the older build, like you are using the latest stable build. सबसे पहली important थी. बेटा चल सकता है but don't go for the developer one. And secondary, HTTPS देख के चलाना. If any site does not have HTTPS, don't go for any transactions on that. Don't go on for like browsing that. लाइक अगर जो लाइक मैं, गुरु एंड आकाश, वी थ्री और मतलब इंटरनेट पे हम लोग लाइक 24/7 होते हैं, तो it's very easy for us to like find a phishing page. Like let's say SBI का बैंक का ये है होम पेज है, लाइक मैं उस पे जाता हूँ, मुझे पता है, मैं मैन्युअली एंटर करता हूँ वो साइट,
या मैं गूगल करके वो साइट पे नहीं जाता हूँ, नहीं करना, या देयर विल बी अ और लॉट ऑफ गूगल पर पे जब जाता हो तो एक एकदम स्मॉल माइनस डिफरेंस होते हैं उसमें जो तुमको मतलब नोटिस करने आना चाहिए. एंड एक्चुअली विंडोज तुम्हारा ब्राउजिंग डेटा भी आई थिंक जो जाता है ना एज पे, या वो आई थिंक सिक्योर करने लगा, आई थिंक एज सिक्योर करने यस, लगा है, एज कर रहा है, एज कर रहा कर है. रहा है. या तो एज एन क्रोम, लाइक क्रोम पे तो लाइक आई रिमेम्बर जब आवर नडकदम की वेबसाइट सर्टिफाइड नहीं हुई थी, तो अगर कोई रैंडमली अपने क्रोम पे या एज पे खोल रहा था तो इट वाज गिविंग अ रेड स्क्रीन के अलाउ ही नहीं कर रहा था जाने पे. या तो इट वो स्टार्टेड एडवांस करके डूइंग द करना होल पड़ता है. सिक्योरिटी yes. कि हाँ कि HTTPS is the main thing, but Yeah. the secondary thing is कि भाई you check the payment gateway that you are going through. Like अगर कोई अपनी वेबसाइट पे बोल रहा है कि insert the credit card info, नहीं, unless it's like PayUmoney, Citrus Online और जो बड़े बड़े प्लेयर्स है इसमें. any like, और अगर तुझे लगे कि भाई ये कोई कभी पेमेंट गेटवे का नाम नहीं सुना, गूगल इट, सी भाई वो कहाँ का है, does it, is it like certified or something, because unless it's not, don't take that risk कि वो क्रेडिट कार्ड इन्फो कहाँ जाता है तुझे नहीं पता. सी एंड तुम totally. लोग जब पेमेंट भी करते हो ना, प्लीज डोंट सेव योर क्रेडिट कार्ड, neither debit card Anywhere, details, anywhere. anywhere, like Like इधर I भी. would not go for like anywhere. यहाँ पर मैंने थोड़ा because I had studied about it कि Windows browser पे I would say yeah, don't take that risk. वहाँ पर you don't save it. But it's like iCloud password, iCloud का होगा, या फिर you have NordPass, या अगर कोई certified like you have that kind of a service, then you can save in that information, and then that like because it's again saved through three inform. तेरा password, तेरा two-factor authentication, हाँ, and your that Face is ID there. or Touch ID. सी it ऐसा is नहीं just है to be कि safe. iCloud का भी डेटा लीक नहीं होता, iCloud का भी होता है, but the thing is that data cannot be accessed unless the person does not like, अगर बंदे ने फेस आईडी टच आईडी कुछ नहीं रखा तो बात अलग है, then I won't suggest, like my mom dad does not keep touch ID because they want like an ease of access, तो उनको बोलना पड़ता है कि then don't save any of the card information on your iCloud database, या कोई भी पासवर्ड, तो उनका पासवर्ड कभी सेव होता ही नहीं, and Apple doesn't let you save it. And even it is better to just not save anything anywhere. That is the best option You to don't, how would you remember have. that's the thing ना, how would you remember? हाँ, तो कार्ड है ना हाथ कार्ड में, है ना. फिजिकल कार्ड है No, हाथ में. this is also an extension of saving a passwords and everything. या पासवर्ड भी तो तुमको कहीं तो सेव करने सी होंगे. बट एज का एक हाँ. फीचर है जो रिसेंटली मैंने देखा, लाइक जो लीक पासवर्ड होते हैं वो Yeah, that तुमको it tells पॉपअप. you, yeah, pop-up, yeah, Safari में भी it एक्चुअली is. मेरा रिसेंटली कोर्सेरा पे 2 कोर्सेज किए थे वगैरह वगैरह, बट उसका पासवर्ड लीक हो गया रिसेंट. The most तो important thing, मुझे हर महीने have I been pwned वाली वेबसाइट पे जाओ, I will link it in the description, and check your details, like तुम्हारे जो जनरल email IDs है कि वो email IDs कहाँ का लीक हुई है, and then वहाँ आके you can just change your password. So that's where like the thing is कि if you have any service like Dashlane, NordPass, PIA का भी अपना private, like if I remember, password manager. Basically these are Or premium password places manager. where you pay for them. Yeah. So the only benefit that iCloud gives you, that it gives you a free tier के तेरे को if you have an iCloud password like manager, वो free of cost पड़ता है. So that's the only benefit it gives. तो वहाँ पर मैंने बोला कि start with that. But then if you can, like I have not moved on to it, but and I'm not sponsored. हम लोग तो इतना sponsor नहीं है by the way. हाँ. But I just I hope so sponsor हो जाएंगे. Hope so, yeah. At least Dashlane कुछ और पैसा मिले. NordPass if you are listening. If you are watching, yeah. Please. But the thing is, it's the best option that you can have right now. Like if you want your information on your hand but safe. yeah. तुझे पासवर्ड तारे देखने को भी मिल जाए और you can just go, मतलब And if you're on the internet now, you're not safe. We are in Yeah. like 21st century right now. हमको consider करना है कि anywhere we go on internet, हम अपना payment detail डाल रहे हैं, तो whether it's secure or not, तुम खुद search करो, check करो, and most important thing is कि piracy है जो avoid करो. Yeah. Because वो एक backdoor बोल सकते हैं तुम्हारा security breach का. Yes. Whenever you pirate things, you don't know what the guy who cracked it or he did it with the software. तुमको नहीं पता उसने क्या उसमें changes किए. Yes. Maybe वो software run हो रहा रहेगा and तुम्हारे background में वो तुम्हारी file check कर रहा रहेगा. Exactly. ये वो So, And all especially ये टाइम पे स्पेशली ये आता है कि सुना वो क्रोम से डाउनलोड करते हैं या व्हाटएवर, सो अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो इट स्नीक्स इन सम सॉफ्टवेयर जहाँ पे, सो द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज क्रोमियम नाम का एक वायरस है yeah. which is so horrible कि मतलब विंडोज डिफेंडर भी उसको रोक नहीं पाया,
एंड व्हेन यू इंस्टॉल स्टफ तो वो इंस्टॉल हो जाता है खुद से. एंड क्रोम का वायरस है ये, क्रोम का काइंड ऑफ क्रोम का वायरस है ये. एंड whatever you open in Chrome तो वो रेप्लिकेट करता है खुद से. Yeah. एक टाइम आता है जब क्रोम का खुद का जो लोगो है वो चेंज होके ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, विच इज क्रोमियम. एंड उसको निकालने के लिए यू नीड अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर Like Malwarebytes. Yes. So exactly. So and that recently is मेरा हुआ था. Malwarebytes is actually paid one. Okay. It's not a free software. So you get a 15-day trial. जब मेरे पिछले पीसी में ट्रोजन हॉर्स घुसा था तो मैंने उसका 15 डेज का किया था. वेरी गुड सॉफ्टवेयर. इट चेक्स एवरी फाइल जो एक्चुअली प्रोसेसेस वगैरह पूरा चेक करता है, वो सर्विसेज चेक करता है विंडोज के, एंड देन इट रिमूव्स द वायरस. yeah and it is मतलब फिर भी that is still a huge process to do. and ये सब बस याद रखने की चीज है. and one more thing that is कि I guess Windows अभी इतना पावरफुल हो गया है कि you don't need a third party antivirus for your PC. Yeah, definitely. अभी भी लोग चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी मैं जिन लोगों को जानता हूँ बहुत सारे who are not into the tech stuff but they are using an antivirus over Windows 10 एंड जिसका कोई यूज भी नहीं है. एंड जो लोग बेच रहे हैं इसको तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा चलो 600 रुपए का मैं 500 रुपए में दे देता हूँ, आप ले लो. एंड वी स्टिल हैवंट, मतलब वी हैव, बट अ लॉट ऑफ पीपल हैवंट गॉटन टू द माइंड कि अच्छा एंटीवायरस के बिना भी लैपटॉप चलता है. लाइक आई रिमेंबर जब मैंने अपना लास्ट लैपटॉप लिया था लास्ट ईयर, तो लेने पे लाइक इट हैड यू नो द व्हाट यू कॉल, मेरे ख्याल से मैकेफी या नॉर्टन का 1 ईयर का उसके अंदर था. एंड आई सिंपली अनइंस्टॉल्ड इट बिकॉज आई नो कि वो खुद एक वायरस का काम कर जाता है, बिकॉज द वे इट टेक्स अप योर स्पेस एंड इट टेक्स अप योर प्रोसेसेस एंड डजंट डू एनीथिंग. वो डिफेंडर वही काम उससे कम रिसोर्सेज लेकर कर रहा है. आई थिंक लैपटॉप्स में मैक एक प्री-बिल्ट आता है ऑलरेडी, प्री-इंस्टॉल्ड लाइक अ ब्लोटवेयर. या मोस्ट ऑफ द कंपनीज नॉट अ ब्लोटवेयर तो इंस्टॉल नहीं कर सकता. वो खुद का ये रहता है उनका, हर एक पीसी कंपनी का, लैपटॉप कंपनी का. लोग एक्चुअली विंडोज डिफेंडर पे ट्रस्ट नहीं करते इतना, क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स है जो नॉर्टन यूज करते हैं, बिट डिफेंडर यूज करते हैं. तो लाइक वो यूज करते हैं ये सारी चीजें, बट आई थिंक कुछ लोग उसमें से डिफेंडर भी साइमल्टेनियसली ऑन रखते हैं टू बी लाइक फुल सिक्योर. नहीं, दैट इज सो, ये लोग जिनको टेक्नोलॉजिकली पता है कि क्या क्या हो रहा है, फॉर देम दिस इज नॉट अ ह्यूज डील. बट जिनको अभी पता नहीं है, जो अभी देख रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि विंडोज डिफेंडर चीज नाम का चीज है, जस्ट ट्राई टू अच्छा कि वापस अपग्रेड ना करो, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग $600-700 जस्ट फॉर दी antivirus which is already in your PC. Yeah, that's the main point. And it is safe. I mean, we know that it is safe. बस इतना है कि हर हफ्ते एक बार फुल चेक उसमें चलाते रहो, and that's enough. Like if you are not pirating daily, तो you don't need to do that, okay? But तुम लोग daily piracy कर रहे हो और whatever the software you're installing or games you're installing, तो you should keep, एक बार इंस्टॉल हो गया कीप स्कैनिंग. बट इंस्टॉल हो गया, तुम एक्चुअली लाइक पायरेसी का भी एक बोल सकते कि एक ट्रस्टेड डीलर्स होते हैं उनके. सो लाइक स्पेसिफिक टोरेंट्स होते हैं, लाइक लेट्स से फिटगर्ल है जो गेमिंग बहुत बड़ा साइट है. सो लोगों को पता है कि वो कुछ माइनिंग सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल नहीं करेगी तुम्हारे इसमें, राइट? तो वो बेसिकली एक ट्रस्ट बन जाता है, तो वो ट्रस्टेड है, इसीलिए लोग उसका टोरेंट डाउनलोड करते हैं. बट कोई रैंडम गाय अगर वो टोरेंट डालता है और तुम उसको इंस्टॉल करते हो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. या नहीं तो बट लाइक द थिंग इज कि मैं पहले लाइक करता था ना, यूट्यूब पे स्कैरी डील है कि यू नो कि पायरेटेड गेम इंस्टॉल करिए, कोई इशू ना हो जाए. एंड कई बार आता भी था, लाइक वायरस आ भी जाता था. दैट द ओनली डिफरेंस दैट आई फाउंड कि मैंने जब से लाइक आई मूव टू लाइक यू नो गेम पास और ये सब खरीदा, एंड आई हैव बीन प्लेइंग ओनली द गेम दैट लाइक आर लेजिटिमेट, कि वो टेंशन खत्म हो जाती है बैक ऑफ द माइंड कि हमेशा भाई कि कोई वायरस तो नहीं है. लाइक इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक जब 2006 में मैंने पीसी लिया था, मेरे गेम्स के चक्कर में मैंने मेरे पीसी में इतना वायरस ये किया है, लाइक लिटरली 4-5 बार, मुझे 4 मंथ में मैंने 6 बार मेरा पीसी फॉर्मेट किया था. मुझे तब आता नहीं था, तो मुझे किसी को बुलाना पड़ता था. तब भी शुरू में, तब भी जब व्हेन आई इनिशियली गॉट इट, तो मेरे को लगता था कि फर्क क्या था. मुझे आई डिडंट नो कि दो गेम्स वे पायरेटेड, जो दुकान पे यू नो यू गेट इन पैकेट. तो बाद में मैंने अंडरस्टूड, देन आई यू नो मूव्ड ऑन कि भाई नहीं, बॉक्स ही खरीदना है ऑफिशियल सेलर से. लाइक यू नो व्हेन यू गेट दो बॉक्स गेम, देन यू नो इट इज बेटर फॉर अ लॉन्ग रन ना. मुझे आई मीन वो कैसा है कि 99 रुपीस में एक गेम मिल जाएगा तुझे बाहर पायरेटेड में,
and you get the same price, same game for 999 Yeah. in the original store. But in the 99 same वाला case कितनी बार तुम्हारा पीसी खराब करेगा वो भी तो. खराब करेगा उतना. हाँ एग्जैक्टली. सो 999 का बेटर रहेगा बिकॉज पीसी खराब तो नहीं करेगा वो. हाँ exactly. So eventually it will cost you less in the long run, Yeah. which is obviously useful. तुम लोग And- क्या इंस्टॉल करते हो ये तुम्हारे इस पे हाँ करता है वो कि तुम कितने सिक्योर रख रहे हो तुम्हारे पीसी को या बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अगर तुम्हारा डेटा लीक हो जाता है एंड तुम्हारे बैंक के डिटेल्स तुम्हारे पीसी पे पड़े और तुम्हारे ब्राउजर पे पड़े तो वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है. Yeah. क्योंकि अगर कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह होता है तो तुम उसको बाद में रिकवर नहीं कर सकते, ना ही बैंक कर सकता है. बैंक तुमको ओटीपी वगैरह पूछेगा बट उसने उसका भी बाईपास करने का मेथड. वो तो होता ही है. अगर if there is any abroad based site वहाँ पर तो ओटीपी मांगते भी नहीं है ना. एग्जैक्टली. सी तुम लोग अगर सेफ रहना चाहते हो तो लाइक मेक वेरी कैलकुलेटेड डिसीजंस ऑन इंटरनेट कि एंटीवायरस ऑन है क्या, तुम्हारा कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो. लाइक तुम यूसी ब्राउजर कर रहे हो और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारा डेटा लीक ना हो, तो ऐसी चीजें नहीं हो सकती. या अनदर पॉइंट आई वुड ऐड कि अगर तुमको अपने पासवर्ड विंडोज में सेव करने ही है तो अनलेस यू डोंट हैव लाइक अ फिंगरप्रिंट सेंसर वाला लैपटॉप और यू नो अनलेस यू डोंट कीप अ लॉन्ग पासवर्ड ऑन योर लाइक लॉगिन विंडोज के, डोंट डू दैट, डोंट टेक दैट रिस्क. सी तुम पासवर्ड सेव करो, लाइक मैं भी करता हूँ बट मेरा जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके पासवर्ड्स उसके passwords मैं नहीं। बड़े रखता हूँ एंड मैं मतलब मुझे थोड़ा सा सेंस है साइबर सिक्योरिटी का कि वो कैसे चलता है. लाइक एन्क्रिप्शन क्या कैसा वर्क करता है 128. नहीं बट द थिंग इज कि पासवर्ड का सबसे बड़ा चीज है ना कि लाइक आई कैन जस्ट अगर तुम्हारा पीसी खुला हुआ है तो आई कैन जस्ट ओपन क्रोम सेटिंग में सर्च फॉर पासवर्ड एंड सारे पासवर्ड की लिस्ट आ ना यू हैव टू एंटर कोड अगेन. ऐसा है. दिस आई नीड टू नो अबाउट इट. ओके. तुम्हारा Code पीसी enter भी करना ऑन है। होगा, तुमको तुम्हारा ईमेल एड्रेस नहीं तो तुम्हारा जो पीसी का पिन है वो याद रहना चाहिए, एल्स नो वन कैन सी योर पासवर्ड. ऐसा हाँ। होता है. तुमको देखने के लिए भी वो परमिशन लगता है कि परमिशन लगता है. yes. आर यू रियली दैट पर्सन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पासवर्ड. लाइक तुम लोग चेक करना चाहते हो आई नीड टू चेक अबाउट इट बिकॉज मैंने वो चीज देखी तो इसलिए मैंने अपने विंडोज पीसी पे नहीं रखा, अपने लैपटॉप पे रखा है बिकॉज दैट अगेन आस्क फॉर योर फिंगरप्रिंट. आई थिंक और अब मेरा फोन मांगता है बट मेरा पीसी नहीं मांगता. आई थिंक क्रोम पे नहीं होता बट आई थिंक एज पे मैंने देखा है. नहीं क्रोम पे है. क्रोम पे है. क्रोम पे भी है क्या? Yes. मुझे नहीं पता. आई स्टॉप पे है। यूजिंग क्रोम क्योंकि वो बहुत सारा स्पेस लेता था एंड ऑल दैट. हाँ क्रोम रैम बहुत खाता है बट हाँ. ओके. तो होपफुली सेफ रहो. हाँ क्या I guess इंस्टॉल कर sir, रहे हो. यही And कोविड में ही passwords. सीन बहुत हो रहे हैं एंड इन द पैंडेमिक इटसेल्फ लोगों को घर बैठे कुछ काम नहीं है तो लोग बहुत स्कैमिंग करते हैं. या Just we say, I just wanted to warn everybody just about some similar scam in internet security itself. अगर तुम लोग कोई भी URL देख रहे हो तो URL में ठीक से देखो. जैसे मुझे आया था एक, मेरे मॉम को आया था एक्चुअली कि amazon.com/ कुछ होना चाहिए. So it was sale.com/amazon या एंड सिमिलर पेज है, कोई मतलब डिजाइन सेम किया है अमेजोन के जैसा एंड दे जस्ट आस्क यू योर डिटेल्स या एंड बहुत से लोग ये डाल भी देते हैं बिकॉज अमेजोन तो सामने लिखा हुआ दिख रहा है. या So, जो भी सेम चीज website आती है. मेरे को बहुत मेल्स आते हैं लाइक एप्पल के, लाइक iCloud पेमेंट हो गई है या परचेज हो गया ऑन योर वो, और फिर बाद में देखो कि लाइक सम रैंडम अकाउंट बट देखने में बिल्कुल iCloud का इनवॉइस लगता है. Exactly. यू हैव टू मेक श्योर कि भाई तुम जो ईमेल आईडी का भी सोर्स है लाइक दैट यू हैव चेक्ड इट. या दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. So, I guess whatever be you do safe. on internet कि चेक करो तुम लोग क्या कर रहे हो एंड बी श्योर कि अगर तुम बैंक के साइट पे जा रहे हो, लाइक लेट्स से HDFC का बैंक डेली उस पे जा रहे हो, लेट्स से कि कस्टमर केयर का आइकॉन नाम के बाजू को एक मैसेज का आइकॉन है बट तुम एक बार साइट पे गए एंड वो तुमको आइकॉन ही नहीं दिख रहा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द रियल साइट. Real site, यू हैव टू रिफ्रेश द पेज अगेन एंड चेक कि ये सेम साइट है या नहीं. या क्योंकि फिशिंग पेजेस पे स्कैम करना लोगों को इट्स अ वेरी बेसिक टेक्निक. या Yeah. And if you don't know something about a website or about security in general, study about it first rather than just going and doing something. एंड जो बड़े लोग हैं लाइक 50+ 40+, अगर तुमको ये सारी चीजें पता नहीं है तो एटलीस्ट आस्क योर सन, लाइक तुम्हारे ग्रैंडसन, इनको पूछ लो अगर उनको नॉलेज हो तो, बिकॉज तुम लोग कुछ करने जाओगे बट दैट मे एंड अप बीइंग अ डिजास्टर. या Totally.
So anyway, this was our discussion on the security. Thank you for tuning in. We'll see you in the next episode.